عائشہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی، سب سے قریبی صحابی اور تمام صحابہ میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، ان کی بیٹی۔ حضرت ابو بکر کا تعلق قبیلہ قریش کے ایک مشہور خاندان بنو تیم سے تھا، اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیمی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب سے جا کر کے مل جاتا۔ حضرت عائشہ کی ماں کا نام ام رومان تھا، اصل نام زینب تھا لیکن کنیت تھی ام رومان۔ والد کا نام عبداللہ تھا لیکن کنیت سے وہ زیادہ مشہور ہیں، ابو بکر کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، صدیق ان کا لقب ہے۔ حضرت عائشہ نبوت کے 5ویں برس حضرت ابو بکر کے گھر میں پیدا ہوئی۔ ایک ایسے گھر میں حضرت عائشہ پیدا ہوئی جہاں پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کی آواز صبح شام ان کو سننے کو مل رہی ہے۔ مشرکانہ ماحول حضرت عائشہ نے دیکھا ہی نہیں، اسلام کی حالت میں ان کا گھر اسلام کا مرکز تھا۔ صبح شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ضرور اپنے دوست ابو بکر سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جس گھر میں اللہ کے نبی کا صبح شام آنا ہو، اس گھر کی برکت کا کیا کہنا، اس گھر کی روحانیت کا کیا کہنا، اس گھر کی نورانیت کا کیا کہنا۔ اس بابرکت ماحول میں حضرت عائشہ پیدا، اور ظاہر ہے کہ اس گھر کے ماحول سے بچپن سے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سیکھتی رہی، متاثر ہوتی رہی۔ حضرت عائشہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھی، بہت شارپ مائنڈڈ تھی، دماغ بہت تیز تھا ان کا۔ 6-7 سال کی عمر میں ظاہر ہے کہ بچے کھیلتے رہتے ہیں، حضرت عائشہ بھی کھیلتی رہتی تھی، مگر کھیل کے دوران بھی اگر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی کوئی آیت حضرت عائشہ کے کانوں تک پہنچی تو اس کو ایک بار سنتی تھی، یاد کر لیتی۔ اتنی زبردست ان کی میموری تھی، ان کی یادداشت اتنی اچھی تھی۔ 8 سال کی ان کی عمر تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے ہجرت کر رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر کی پوری فیملی لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر تو ساتھ میں ہی تھے، پھر 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ٹھہرے رہے۔ 3 دن تک حضرت اسماء حضرت عائشہ دونوں مل کر کے کھانا بناتی تھی، حضرت اسماء لے جا کے کھانا پہنچاتی تھی وہاں غار ثور میں۔ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ وہ جاتے تھے روزانہ شام کو اور رپورٹ دیتے تھے مکہ والوں کی کہ کیا آج پلان ہوا، کیا آپس میں مشورہ ہوا، کیا چل رہا ہے۔ ان کا غلام حضرت ابو بکر کا عامر بن فہیرہ وہ بکریوں کو لے کے جاتا تھا، بکریوں کا دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر پی لیتے تھے، اور بکریوں کے پیروں سے حضرت عبداللہ کے نشانات جو پیروں کے ہوتے تھے وہ مٹ جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ ماتر 8 برس کی تھی اس واقعے کے موقع، مگر اس واقعے کی ایک ایک ڈیٹیل حضرت عائشہ کو یاد تھی جو انہوں نے بعد میں حدیثوں کی شکل میں امت تک پہنچایا ہے۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول کا نکاح کیسے ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں جب ہم حضرت سودا کی بات کر رہے تھے تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوا۔ اس نکاح کی بات سب سے پہلے کس نے چلائی؟ حضرت خولہ بنت حکیم نے چلائی تھی۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کو ایک شریک حیات کی ضرورت ہے، ایک ہم سفر کی ضرورت ہے، میں آپ کے حالات دیکھ رہی ہوں، آپ کی بچیاں بھی ہیں، آپ شادی کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے، تو انہوں نے 2 رشتوں کا ذکر کیا، ایک رشتہ حضرت عائشہ کا تھا اور ایک رشتہ حضرت سودا کا تھا۔ حضرت سودا سے نکاح ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد شوال سن 10 نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ اس نکاح کی بات جب حضرت ابو بکر سے شروع ہوئی تو حضرت ابو بکر نے اس پر ایک سوال کیا، کہا کہ میں تو اللہ کے رسول کا بھائی لگتا ہوں، تو اس رشتے کے اعتبار سے تو عائشہ بھتیجی ہیں، بھتیجی سے چاچا کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو جواب بھجوایا حضرت خولہ کے ذریعے کہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، سگے بھائی نہیں ہیں، ایسا رشتہ نہیں ہمارے بیچ میں کہ ان کی بیٹی میرے لیے حرام ہے۔ گویا ایک عرب میں ایک منہ بولے رشتوں کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی تھی، اس رسم کو بھی توڑا ہے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے نکاح کر کے۔ حضرت ابو بکر تیار ہو گئے، نکاح ہوا، خود حضرت ابو بکر نے نکاح پڑھایا، 500 درہم مہر طے ہوا، اور بڑی سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ کہتی میری عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال کی تھی۔ اب ہمارے بہت سارے جدید دور کے علماء کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیسے پاسبل ہے، 9 سال کی لڑکی کی شادی ہو جائے، رخصتی ہو جائے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر اور سیرت سے میل نہیں کھاتی ہے یہ بات۔ تو بعض لوگوں نے اس میں یہ تحقیق نکالی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کی عمر 19 برس تھی۔ وہاں جو بخاری میں جو الفاظ ہے 9 تو راوی سے وہاں 10 کا لفظ چھوٹ گیا ہے، وہاں 10 کا لفظ بھی ہونا چاہیے، 9 10
9 साल नहीं 19 साल उम्र थी हजरत आयशा की। मगर भाई ये सारी बातें, ये सब बनावटी बातें हैं। सही बात यह है कि हजरत आयशा की उम्र 9 बरस की ही थी। अगर आप 9 को 19 इसलिए बनाना चाहते हैं कि इस्लाम के दुश्मन खामोश हो जाएं, तो वो 9 को 19 बनाने से भी खामोश नहीं हो। वो तो इस पर भी एतराज करेंगे, 19 बरस की लड़की की शादी 50 साल के आदमी से कैसे होगी। वो तो इस पर भी सवाल करेंगे कि अल्लाह के रसूल की 11 शादियां क्यों हुई। तो हम किस किस सवाल का जवाब देंगे। रहा यह सवाल कि 9 बरस की उम्र में शादी कैसे हो गई, होती है भाई। हम अपने मुल्क के माहौल के हिसाब से क्यों हर चीज को परखते, अपने दौर के हिसाब से हर चीज को क्यों परखते। आज हिंदुस्तान में लड़कियां 13-14 साल की उम्र में बालिग होती हैं। अमेरिका वगैरह में 11-12 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं। बाज ऐसे ममालिक है जो गर्म ममालिक हैं, अफ्रीका वगैरह में, अरब वगैरह में बाज जगह ऐसी हैं जहां तक मौसम ऐसा है, एटमॉस्फेयर ऐसा है, वहां 10 साल की उम्र में लड़कियां बालिग हो जाती। और ये मैं कोई हवाई बात नहीं, मेडिकल साइंस कह रही है 10 साल की उम्र में लड़की बालिग हो सकती है, कोई हैरत की बात नहीं। एक लड़की के बालिग होने में उसके खान पान का, उसके माहौल का, उसकी आबो हवा का, बहुत सारी चीजों का रोल होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में हजरत आयशा से निकाह किया, उस जमाने में 9 साल की उम्र में बच्चियां शादी के लायक होती थीं। इसलिए इसमें कोई सवाल नहीं उठता है। और ये निकाह अल्लाह ताला की तरफ से कराया गया था। सवाल अगर हम खड़े करते तो सवाल फिर अल्लाह ताला के ऊपर भी खड़े हो जाएंगे। भाई अल्लाह ताला की मसलहतें थी, हिकमतें थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ना 9-10 साल के आसपास की उम्र में अल्लाह के रसूल के निकाह में आई, और मदीना की तकरीबन 9 बरस की जिंदगी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अहम जिंदगी का हिस्सा था, वो हजरत आयशा ने बीवी की हैसियत से गुजारा। अल्लाह के रसूल के ऊपर कुरान उतरता था, कुरान की आयतों को हजरत आयशा पढ़ती थी, सुनती थी, उसकी तफसीर को समझती थी। अल्लाह के रसूल जो बातें घर में बयान करते थे, जो काम करते थे, बीवियों के साथ आपका ताल्लुक कैसा था, बिस्तर पे कैसे सोते थे, यानी अल्लाह के रसूल की जो निजी जिंदगी थी, जो प्राइवेट लाइफ थी, उसको उम्मत तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये एक हिकमत थी कि एक ऐसी औरत का अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल के लिए इंतखाब किया जो 9 से 10 साल के बीच की उम्र में अल्लाह के रसूल के निकाह में आए। आज बहुत सारे ममालिक में यह कानून है कि यहां लड़की की शादी 18 साल के पहले नहीं हो सकती, 17 साल के पहले नहीं हो सकती। इस्लाम की नजर में बुलूगत क्राइटेरिया है, लड़का या लड़की बालिग हो जाए वो शादी के काबिल हो जाते हैं। यानी वो शादी के बाद की जो जिम्मेदारियां हैं, मियां बीवी का जो ताल्लुक है, अगर उसके काबिल और उसके लायक है तो शादी हो सकती है, इसमें कोई एतराज की बात नहीं। हजरत आयशा का जो ये निकाह हुआ अल्लाह के रसूल के साथ, ये अल्लाह ताला की तरफ से भी था। आइए उस पर एक दलील मैं आपको दे देता हूं। सही बुखारी की 5125 और सही मुस्लिम की 2438 नंबर की हदीस है। हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमाया कि राइतु के फिल मनाम, अय आयशा शादी के पहले मैंने तुमको ख्वाब में देखा था, मैंने तुमको ख्वाब में देखा था। यजी ओबिकी अल मलक फी सरक़तिन मिन हरीर, एक फरिश्ता आया और रेशम के एक टुकड़े में तुम्हें लेकर के आया, रेशम के लिबास में तुम्हें लेकर के आया, और उसने कहा कि हाज ही इमरातुक, अय अल्लाह के रसूल ये आपकी बीवी हैं, ये आपकी अहलिया हैं। फकशफ्तु अन वजहिकी अस्सौब, तो मैंने तुम्हारा चेहरा खोला। फरिश्ते ने चेहरा कवर किया था, मैंने चेहरा खोला तो मैंने देखा फैजा अंति हिया, तुम हो ऐ आयशा, उस रेशम के कपड़े में तुम थी। फकुल तो उसी वक्त मैंने कहा था इन यकु हाज़ा मिन इंदिल्लाहि युमज़िही, अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे दिखाया गया है तो ऐसा हो करके रहेगा। और एक पॉइंट की बात आपको बताऊं, ये हदीस इमाम बुखारी सही बुखारी में कई जगह पर लाए हैं, लेकिन मैंने जो अभी अल्फाज पढ़े हैं ये इमाम बुखारी किताबुन निकाह के अंदर लाए हैं। और इमाम बुखारी ने बाब क्या कायम किया है, बाबुन नजर इलल मरअति क़ब्ल तज़वीज, औरत को शादी के पहले देखा जा सकता, शरीयत ने लड़के को एक बार देखने की। इस हदीस से इमाम बुखारी इस्तिदलाल कर रहे हैं, भाई अल्लाह के रसूल को हजरत आयशा का चेहरा दिखाया गया, तो हजरत इमाम बुखारी इस्तिदलाल कर रहे हैं कि बीवी को, होने वाली बीवी को शादी के पहले एक बार देखा जा सकता है ताकि बाद में शिकवे शिकायतें ना रहें। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा से जो निकाह किया उसमें 3 बड़े बड़े पैगाम थे। एक पैगाम तो यह था कि मुंह बोले रिश्ते अहम हैं, भाई हमने किसी को मुंह बोला भाई बना लिया, किसी को मुंह बोली बहन बना लिया, इस रिश्ते की अहमियत है, मगर मुंह बोले रिश्ते की बुनियाद पर इस्लाम में शादी ब्याह की जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो पाबंदियां हैं, वो लागू नहीं हो। हमने किसी को मुंह बोला भाई बोल दिया तो वो अब उसकी बेटियां हमारी भतीजी हो जाएं, ऐसा नहीं है। इस्लाम की नजर में ऐसा नहीं है। हमने किसी को मुंह बोला बेटा बोल दिया, अब हमारी बेटी का निकाह उससे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है।
शादी ब्याह में मुंह बोले रिश्ते रुकावट नहीं बनेंगे। एक रस्म तो अल्लाह के रसूल ने इस निकाह के जरिए तोड़ दी। दूसरा पैगाम यह दिया गया कि निकाह इंसानी समाज की तामीर और तरक्की के लिए बहुत जरूरी है और निकाह बिल्कुल सादा होना चाहिए, हर किस्म के रस्म और रिवाज से पाक होना चाहिए। अल्लाह के रसूल पूरी दुनिया की सबसे अजीम हस्ती हैं, आपका निकाह बड़ी सादगी के साथ हजरत आयशा के साथ हो गया। अब तीसरा पैगाम यह दिया गया इस निकाह के जरिए, यह निकाह शव्वाल में हुआ। दौरे जाहिलियत में शव्वाल का महीना बड़ा मनहूस समझा जाता था शादी ब्याह के। किसी जमाने में शव्वाल के महीने में कोई वबा फूटी थी, लोग बहुत बीमार हुए थे, बहुत मरे थे, तो लोगों ने कह दिया भाई शव्वाल में निकाह नहीं हो सकता, शव्वाल में पाबंदी। जो हमारे यहाँ 3, 13, 23 वो लोग मनहूस समझते हैं। बाज लोग सफर के महीने को, अभी तो सफर ही चल रहा है ना, शायद सफर के महीने को लोग मनहूस समझते हैं। हमारे यहाँ तो औरतें सफर के महीने को तेजी बोलती हैं। इस महीने को तेजी बोलना भी गलत है, हराम है तेजी बोलना इस महीने को। इस महीने में अगर कोई ये समझता है बच्चा पैदा होता है तेज होता है, ये भी जहालत है, गलत अकीदा है। इस्लाम की नजर में ये सारे अकीदे बातिल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से निकाह करके ये पैगाम भी उम्मत को दिया। अच्छा, अब निकाह तो हो गया 6 साल की उम्र में, रुखसती 3 साल के बाद हुई थी, हिजरत के बाद। निकाह हिजरत के पहले हुआ है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और मदीना पहुंचे तो अभी फैमिली, हजरत अबू बकर की फैमिली भी और अल्लाह के रसूल की फैमिली भी अभी मक्का में है। तो जब वहां जाकर के कुछ सुकून मिला, कुछ आराम मिला, तो हजरत अबू बकर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को भेजा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम हजरत राफे को और हजरत जैद इब्ने हारिसा को भेजा कि जाओ हमारी फैमिली को लेकर के आओ। तो हजरत जैद अल्लाह के रसूल की बीवी हजरत सौदा को और आपकी बेटियां हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा को, और इसी तरीके से हजरत जैद की बीवी हजरत उम्मे ऐमन को और जैद के बेटे उसामा को, इतने लोगों को लेकर के आए। और हजरत अब्दुल्ला अपनी मां उम्मे रूमान को और अपनी बहनों को हजरत आयशा को और हजरत अस्मा को लेकर के आए। निकाह हो चुका है हजरत आयशा से अल्लाह के रसूल, अभी रुखसती नहीं हुई है। तो ये लोग जब मदीना पहुंचे तो हजरत सौदा के लिए और हजरत फातिमा और उम्मे कुलसूम के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से बिल्कुल सटा हुआ 2 कमरा बनवाया था। वो लोग वहीं पर शिफ्ट हो गई और हजरत अबू बकर की फैमिली अलग एक मकान में शिफ्ट हो गई। उसके बाद जब हजरत आयशा की उम्र 9 साल की हुई, यानी हिजरत के तकरीबन 2 बरस के बाद या हिजरत के 1 बरस के बाद रुखसती हुई। रुखसती कैसे हुई, बड़ा दिलचस्प वाकया सुनिएगा। सही बुखारी के अंदर 3894 और सही मुस्लिम के अंदर 1422 नंबर की हदीस है। अम्मा आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शादी की जबकि मैं 6 साल की थी। जब हम लोग मदीना पहुंचे तो हम लोग कबीले खजरज के एक खानदान बनुल हारिस में हम लोगों ने पड़ाव डाला। मदीना पहुंचने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरे बाल झड़ने लगे। फवफ़ा जुमैमतन, मेरे बाल इतने छोटे हो गए कि कंधे तक आ गए। जैसे हमारे यहाँ बाज लोगों के यहाँ वो लड़कियां जो बाल रखती हैं, जिसको हमारे यहाँ पट्टा बाल बोलते हैं, कंधे तक का बाल, हजरत आयशा का बाल झड़ करके इतना छोटा हो गया। कहती है फवफ़ा जुमैमतन, कंधे तक का मेरा बाल हो गया। फ़अततनी उम्मी उम्म रूमान, एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी, मेरी माँ उम्मे रूमान आई और मुझे बुलाने लगी। मुझे पता भी नहीं था वो क्या चाहती हैं। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और घर के दरवाजे पर ले जाके मुझे खड़ा कर दिया। मैं हाँपने लगी, मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी। फिर उसके बाद मेरी माँ ने मेरा चेहरा धुलवाया, मेरे बाल को धुलवाया और उसके बाद मुझे घर के अंदर लेके गई तो वहां अंसार की कुछ औरतें बैठी हुई थी। तो उन लोगों ने मुझे देख करके कहा कि अलल खैर वल बरका, आओ ये शादी मुबारक हो, ये रुखसती मुबारक हो, वाला खैर ताहिर, तुम बड़ा अच्छा नसीब लेकर के आ रही हो। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे तैयार किया और मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दिन के वक्त पहुंचाई गई। दिन के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मेरी रुखसती हुई और उस वक्त मैं 9 बरस की, वाना यौमइज़िन 9 सिनीन, मैं 9 बरस की। 9 बरस की उम्र में हजरत आयशा की शादी हो गई। जाहिर 9 बरस की उम्र में ठीक है वो बालिग थी, शादी के काबिल थी, जवान थी, लेकिन लड़कपन तो था। वो लड़कपन शादी के बाद भी कायम था। शादी के बाद हजरत